getting recorded. So let us start with today's session. हम लोग स्क्रीन पे बेसिक डिटेल्स देखेंगे और फिर विल बी मूविंग अहेड. टुडे इज गोइंग टू बी द सेकंड सेशन. इन फर्स्ट सेशन हमने सीखा था, वी लर्न अबाउट what is a particular software and which kind of softwares are there which are generally utilized by engineers, and the graphical user interface is configured in such manner that the operator who is operating that particular software is being comfortable with the software by using its graphical interface. तो उनको कंफर्टेबल रहता है, उस हिसाब से इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है. Today our target is to learn how to draft something by using the basic features available for draft. जो बेसिक टू डायमेंशनल जियोमेट्रीज होते हैं उनसे हर एक डायग्राम्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो बेसिक कौन से फीचर होते हैं? देयर विल बी लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क एंड पॉलीगॉन्स. अब हम एलिप्स को भी एज अ डायग्राम, एज अ टू डायमेंशनल जियोमेट्री कंसिडर करते हैं, तो देयर विल बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दैट ऑल्सो. और इन सब चीज़ों को कैसे ड्राफ्ट किया जाता है? तो वेन एवर वी वॉन्ट टू ड्रॉ समथिंग, जैसे लाइन को ड्राफ्ट करना है तो वी फॉलो अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन टू फॉर्मेट्स. फर्स्ट फॉर्मेट इज बाय यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके हम ड्राफ्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? तो यू विल बी राइटिंग लाइन फर्स्ट इन योर कमांड प्रॉम्प्ट, देन यू शुड बी प्रेसिंग एंटर. लाइन लिख के जब एंटर प्रेस करेंगे तब कमांड प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शंस हाईलाइट होने लगेंगे. उसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा enter first point, and when you enter first point in terms of x coordinate and y coordinate using comma, this is 0 0, what you can see over here is nothing but x and y. Okay, this is x and y, x comma y. And if you press enter after it, then it is going to ask you for the next point, and after mentioning the x and y location of next point, you should be pressing enter, and after that there will be an escape command so that your draft what you had produced is going to be permanently available on graphical user interface. ये पहला मेथड है. And in all cases of different draft what we want to produce or different geometries what we want to produce, it is going to follow by some same set of instructions. Same set of instruction हर एक में use होगा. जैसे if you want to draw a circle, you should be writing circle then enter in command prompt. After that you should be mentioning the center and you should be mentioning the radius. हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट से आगे बढ़ते हैं तो क्या क्या पूछा जाता है और इंस्ट्रक्शन सेट कैसे होते हैं. And the second method what we are going to adopt is using logo or icon. We are going to draft those particular diagrams. Diagram माने basic geometries right now. So what we are going to do, we are going to click on a particular icon. Right now we are referring line, so we'll be clicking on line icon. After that, the graphical interface is going to ask you for first point and next point. You are going to write it and then you are pressing enter, or you will be escaping from it. Right click और left click को use करके mouse button से हम इसे mention कर सकते हैं, highlight कर सकते हैं. Same is going to be followed for polyline, circle, arc and polygons. तो हम हर एक चीज़ को देखेंगे अच्छे से, ठीक है. So now let us switch over to the main software. Software पे shift होते हैं and we'll be seeing all details on the software. Okay. And anywhere if you want to ask question, you can ask that question. So let me open the screen and we should be entering in the software. I hope you are able to see the software. दिख रहा है सबको? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Thank you. Thank you. Okay. So this is going to be the graphical user interface. In that interface, we had learned something about this ribbon and the tabs. टैब के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी. We had also referred these details. And now let me show you the particular things which are required. Particular things.
which should be necessarily observed before you start drafting. Over here you will be able to see certain things: coordinates, model space, grid, snap mode, then dynamic inputs. If you place dynamic input on, you will be having dynamic inputs available with you. If you keep it off, then dynamic inputs are going to be closed. Right now I'm keeping it on and I'm clicking on line. तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा specify the first point. I hope you are able to see this one. Let me position this Google Meet icon at the left, and now I can start. Initially, let me start with a command prompt. You will be able to see command prompt at bottom. दिख रहा है सबको command prompt? Yes, sir. Okay. And whenever you start drafting anything, just press escape. So it is going to cancel the previous commands available inside your screen. Escape press करेंगे, ESC screen, ESC टैब हमारे कीबोर्ड पे लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर पे अवेलेबल होता है एस्केप की। उसे प्रेस करेंगे तो जो भी प्रेजेंट कमांड ऑन होगा वो कैंसिल हो जाएगा एंड द स्क्रीन इज गोइंग टू गेट न्यूट्रलाइज्ड एंड यू विल बी वर्किंग विद द बेस फॉर्मेट। बेस फीचर से आप शुरू कर पाएंगे और you should be considering it that you can now initiate the draft. Okay, because screen is now operating without any commands. So देखिए, you will be able to see at the bottom in command prompt you are seeing right now we are practicing line, LINE line लिखिएगा whenever you are writing line, whether it is with the caps on mode or caps off mode. You will be able to see uh, certain you can say commands available in terms of line. line है, line type है, line weight है, P line है जिसे polyline बोला जाता है, then layout line है और combined polylines हैं. But we are right now targeting line, so we'll be writing line and then I'm pressing enter over here. So you can see it had asked me for line specify first point. It is asking me for first point. I'll be writing 0,0. इसमें पहला 0 है वो x इंडिकेट कर रहा है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा 0 है वो y कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा है. लेट मी प्रेस एंटर. So it had selected first point over here. I hope you are able to see the first point at the origin. Okay. अब यहाँ पे देखिएगा, it had already asked me about the specify next point. You'll be able to see it in command prompt over here. So I'll be mentioning 100. देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं. Whenever you are writing something, just make sure that that thing should be available at the command prompt only. Command prompt में ही वो आना चाहिए. Let me draft it again. Line specify. Okay. Let me अभी शुरू line and enter. You can specify first point 0,0 enter. You can specify next point 100. 100. Okay. जो हो गया 100,0. 100 comma. Okay, I missed it. 100 comma 0. So you'll be able to see we had drafted a horizontal line over here. दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा 0,0 और 100,0 का लाइन. ओके. अब देखिए यहाँ पे हमने लाइन कमांड यूज किया है एंड इट इज आस्किंग मी फॉर नेक्स्ट पॉइंट अगेन. सो इफ आई डू मेंशन right now we are at x100. Okay, so I'm going for it hang
I'm going okay, it is going to be 0, x is 0 and y is 100. Let me press enter, so it is over here now, and it is again asking me for the next point. Look, I am using just command prompt. Okay, so last point what I indicate over here is going to be 0 comma 0. I had created one geometry and I press escape. Escape जब प्रेस करेंगे तब क्या होगा, जो कमांड है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है. सो व्हाट आई हैड ड्राफ्टेड, इफ यू कैन स्पेसिफाई, हमने क्या ड्राफ्ट किया यहाँ पे? Square, yes, very good. We had drafted a square by using line command only. हमने command कौन सा use किया? Line. And what we had done, we had placed next point, and next point, and we had got the whole geometry. Is it so? ठीक है. अब हमें चेक करना है कि whatever dimension we had taken, यहाँ पे annotation tool पे चले जाइए, वहाँ पे you can click on dimensions and you can click on this particular geometry, so you'll be able to see what is the dimension of that object. I hope you are able to see it now. दिख रहा होगा सबको? Okay. Is it so? वही dimension है. If I click over here, I am going to get another dimension. It is 100 also. And I need to press escape. Escape press कर दिया तो क्या होगा? जो command है to measure the dimensions is going to get closed, or to notate the dimension. I'll not say measure the dimensions, to notate the dimension is going to get closed. तो ये हो गया एक जियोमेट्री जो हमने लाइन कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करके और एक स्क्वायर जनरेट किया. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. नाउ in few cases it may happen that after seeing the line you may have a query that I do not want a line to be drafted like this. So what you can do, you can right click on line पे राइट क्लिक करिएगा और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिएगा. Let me use it again in different format, and you can click on by layer. Okay, let me hold it from here. यहाँ से ही हम ऑपरेट कर लेते हैं. यहाँ पे क्लिक कर दिए. In second zone we had clicked and I had clicked on others. तो क्या होगा, जितने लाइन टाइप पॉसिबल है यहाँ पे ड्राफ्ट करने के लिए, those line types are going to get open. यहाँ पे by layer है, by block है, continuous line के फॉर्म में है. And if I need to draft it in alternate manner, other manner, then I can click on load. लोड पे क्लिक करेंगे और जो भी लाइन टाइप का रिक्वायरमेंट है उस पर क्लिक करके ओके दे देंगे, तो ऑल लाइन्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल ओवर हियर. नाउ यू विल बी अमेज्ड टू सी दैट देयर आर मल्टीपल लाइन टाइप्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू ISO. जो ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड है उनमें बहुत सारे लाइन के फॉर्मेट्स अवेलेबल है, जैसे ISO dash space, ISO long dot, and whatever line you want you can place it. अगर आपको hot water supply pipeline दिखाना है, so it is going to be indicated like this, dash then HW then dash then HW. अगर गैस पाइपलाइन दिखाना है it is going to be dash gas. फैंस दिखाना है it is going to be dash block. Okay, fence line अलग अलग टाइप के fence line भी होते हैं. If you need to show the tracks, you can draft it like, you can directly select this one to draft tracks. If you want zigzag lines, तो zigzag lines भी mention कर सकते हैं. So it purely depends on what is your requirement. Section lines दिखाने हैं वो भी दिखा सकते हैं, border lines दिखाने हैं वो भी, border दिखाना है दिखा सकते हैं, center line अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं depending on application, उसे भी दिखा सकते हैं, double dash dot. These all lines are having their own application. Okay, so you need to specify that application and select that one. जैसे अगर मैं ट्रैक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई लाइन में ड्राफ्ट कर रहा हूँ,
So that line is going to be following that track format only. ठीक है, इस लाइन पे क्लिक करेंगे, I'll be right clicking on it and here I'll be just उस पर क्लिक करके यहाँ पे चला जाऊँगा. I'll be moving it in downward direction and clicking on tracks. So it is going to show me a track format. I hope you are able to see it. Yes, of course. Yes, sir. So where are we using this line type? Track वाला line type कहाँ पे use करते हैं? If we want to show the railway tracks on our plate on our main graph, जो जनरली सिविल इंजीनियरिंग में कंटूरिंग में मैपिंग में यूज होता है. जब भी उन ड्राफ्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है तो दे आर इन टू डायमेंशनल ड्राफ्ट्स, दे आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर लाइन फॉर्मेट. अगर मुझे zigzag फॉर्मेट दिखाना है तो यहाँ से दिखा सकते हैं वही. ठीक है, आई हैड अपलोडेड ऑल द लाइन टाइप्स and I'm mentioning it over here. I hope you are able to understand it. If you want to have gas line, it is going to be dash gas dash gas. I hope you are able to see it. तो ये है, ठीक है सर. हाँ बोलिए. सर वो कमांड में लाइन लिखा था तब भी उसमें लाइन टाइप आ रहा था, तो उसमें भी यही खुलेगा फिर, मतलब यही है ना हाँ. उसका? हाँ वही है. देखिए लाइन हमने लिखा है तो लाइन कमांड में these are possibilities. लाइन यूज करना है, लाइन टाइप यूज करना है, वेट उसका चेंज करना है. पी लाइन तो चलिए नेक्स्ट कमांड है, उस पर जाएंगे. बट इफ आई क्लिक ऑन लाइन टाइप और मैं लाइन टाइप लिखता हूँ या फिर लाइन लिख के लाइन टाइप पे शिफ्ट होकर एंटर करता हूँ तो भी यही ओपन होगा. ठीक है, आई हैड डन सेम प्रोसीजर. मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहा हूँ लाइन टाइप, ठीक भैया, एंटर प्रेस करते हैं तो यही ओपन होगा. And whatever line you want to draft, just click on that format, press OK. So now you are with that particular line type. You are drafting with that particular line type. Okay. ऐसे होता है. I hope you are able to understand it now. अब देखिए दूसरी चीज जो हम यूज करते हैं. Let me remove this one. I'll be using clear screen. Or I'll be पूरे स्क्रीन को कवर करके माउस से मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट डिलीट फीचर्स, उससे भी हो जाएगा. वो भी हम देखेंगे, प्रैक्टिस में दिखाऊंगा आपको कैसे होता है. अब देखिए दूसरा जो टास्क हम ले रहे थे वो था आइकॉन से. सो एट द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन यू आर गोइंग टू हैव अ लाइन एज एन आइकॉन अवेलेबल टू यू. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आइकॉन, नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखिए सीक्वेंस शुरू हो गया कमांड का. I'll be selecting a particular point और देखिए यहाँ पे वो specify first point note कर रहे हैं. If I do write 0 tab 0, then it is going to select that particular point and now it is asking me in different manner. अब वो कौन से manner में पूछ रहा है मुझे? वो पूछ रहा है line length और angle के फॉर्म में. I hope you are able to understand it. ये समझ में आ रहा होगा आपको. देखिए वो कौन से फॉर्म में पूछ रहा है, लाइन का लेंथ कितना रखना है और एंगल कितना रखना है. देखिए दूसरा भी चीज होता है वो हम देखेंगे. और अगर मैं लेंथ लिख देता हूँ 50, फिर टैब विच इज बिलो एस्केप, एस्केप से नीचे टैब की होता है, उस टैब की को मैं प्रेस करता हूँ तो जो हमारा कर्सर है वो लेंथ से शिफ्ट होके एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा. एंड इफ आई राइट 0 ओवर देयर एंड एंटर, देन इट इज गोइंग टू मेंशन दैट पर्टिकुलर लाइन ओवर हियर. Look, I had already selected this line type, तो वो उसी को follow कर रहा है. But let me mention it like this and draft it again. मैं फिर से उसे draft कर रहा हूँ same by using icon only. अभी by layer format में line है, मैं line को select कर रहा हूँ. वो मुझे first point पूछ रहा है. I'll be writing 0 tab 0 enter. tab मैं press कर रहा हूँ. ठीक है, अब मुझे वो कौन से फॉर्म में लाइन दे रहा है, लाइन कैसे ड्राफ्ट में मीन्स
which are the information required to draft that line? Length and angle. So I'll be mentioning that length as 50 and angle as 0 and pressing enter over here. अब देखिए, it is asking me for the next point or length. Right now you will be able to see this particular feature is mentioning length from the first point to the end point where my cursor is situated. So I'll be writing 50 over here, then pressing tab. So it is going to ask me for that angle, और ये angle यहाँ पे देखेगा. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये. वो एंगल कहाँ से ले रहा है? पॉजिटिव एक्स से एंगल ले रहा है. आई होप यू आर एबल टू सी ऑन स्क्रीन. यस सर. तो ये जो एंगल है, इफ आई डू राइट इट एज अ 90, देन इट इज गोइंग टू मेंशन इट ओवर हियर. तो अब सोचिए, अभी उसने फिर से पूछा मुझे क्या, लेंथ और एंगल. सो आई विल बी राइटिंग लेंथ एज 50 एंड प्रेसिंग टैब. टैब प्रेस करता हूँ, उसके बाद क्या होगा? इट इज आस्किंग मी फॉर एंगल. तो ये एंगल कितना होगा? इज इट गोइंग टू बी 0 और इट इज गोइंग टू बी 90 और 180 और 270? कितना होगा अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो? 180. Good. All are saying 180. Yes, it is going to be 180 because I had already mentioned that from the present position, it is counting from positive x direction to the and moving towards the direction of draft. अब यहाँ पे बोलिएगा क्या होगा? I'll be mentioning length as 50. Tap. 90. 90. Very good. अब 90 क्यों है? देखिए, दो पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे. I had already mentioned it is going from positive x. तो पॉजिटिव एक्स से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी एंगल एक्सेप्ट कर सकता है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो वहां से मुझे पॉजिटिव एक्स को 0 गिनना होगा. एंड दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90. आई होप यू आर एबल टू सी इट ओवर हियर. यहाँ पे दिख रहा होगा. और मैं नेगेटिव में चला गया, मेरा कर्सर यहाँ पे है. सो आई विल बी फ्रॉम हियर आई विल बी मेंशनिंग 270 और 90. दोनों पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. तो कर्सर ऊपर है तो लिखिए 270. आई होप यू आर एबल टू सी. मैं फिर से उसे ड्राफ्ट करता हूँ. इसी लाइन को रिमूव करके फिर से ड्राफ्ट करते हैं. एंड इफ कर्सर इज अवेलेबल ओवर हियर, लुक राइट नाउ माय कर्सर इज नॉट एबल टू होल्ड द एंड पोजीशन. वो एंड पोजीशन को नहीं पकड़ रहा. तो हमें क्या करना होगा? आई टू स्विच ऑन द ऑब्जेक्ट स्नैप, तब जाके वो एंड पॉइंट को पकड़ेगा. वो भी मैं दिखाता हूँ क्या होता है ऑब्जेक्ट स्नैप. एंड इफ आई विल बी एट द लोअर साइड ऑफ द मेंशन्ड पोजीशन, तो मुझे वहां पे एंगल लिखना होगा. आई विल बी राइटिंग लेंथ फर्स्ट एंड देन एंगल. एंगल विल बी 90. तो मेरा जियोमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक. सो समझ में आ रहा है ये चीज़ है. अब देखिए, मैंने ये जो यूज़ किया ना ऑब्जेक्ट स्नैप, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है. देखिए, मैंने क्लिक ओवर किया. This OSnap, object snap, is a tool which is going to allow us to have position selection on a particular geometry. तो कोई भी जियोमेट्री हमने ड्रॉ किया, उसका एंड पॉइंट हाईलाइट करना है, मेंशन करना है when we draft or we want to select, then it is going to give priority to the end points or mid points or center. Means it is going to highlight those terms when we draft. Geometric center है, node है, क्वाड्रेंट्स बनते हैं कोई जियोमेट्री में, तो वो क्वाड्रेंट्स हैं, इंटरसेक्शंस हैं. ये सारे पॉइंट अगर मैंने ओ स्नैप ऑन रखा है तो मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा. देखिए, अभी मैंने ओ स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखा हुआ है. यू विल बी एबल टू सी इट इन ब्लू कलर ओवर हियर. तो वो इतनी चीज़ों को दिखा पाएगा. लेट मी शो इट टू यू क्या होता है. ये मैं दिखाता हूँ आपको. ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, तो अगर मुझे इस कंपोनेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप अगर ऑन है तो वो मिड पॉइंट हाईलाइट करके देगा. एंड व्हेन माय कर्सर विल रीच टू दैट पोजीशन, इट इज आल्सो गोइंग टू हाईलाइट द एक्स एंड वाई पोजीशन ऑफ दैट मिड पॉइंट. इट इज आल्सो गोइंग टू शो मी द एंड पॉइंट. यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर. ठीक है. वो मिड पॉइंट दिखा रहा है, एंड पॉइंट दिखा रहा है. यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी एंड पॉइंट है, यहाँ भी मिड पॉइंट और यहाँ भी एंड पॉइंट. तो ये ट्रेस हो पाएगा अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है. तो अगर मैं उसे ऑफ कर देता हूँ, नाउ यू विल बी एबल टू सी इट इन वाइट. पहले वो ब्लू कलर में था, अभी वो वाइट कलर में. अब अगर मैं
इसका सेंटर आइडेंटिफाई करना चाहता हूं तो इट इज नॉट गोइंग टू पिक दैट पोजीशन। पिक कर रहा है अभी? नहीं कर रहा। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करके रखेंगे तो हम मिड पॉइंट और एंड पॉइंट पोजीशंस को बहुत इजीली या इंटरसेक्शन पोजीशंस को बहुत इजीली पिक कर पाएंगे। और अगर वो ऑफ है या ऑन नहीं हो रहा तो आपको प्रिसाइजली उस पॉइंट का लोकेशन पता करना होगा एंड फ्रॉम दैट लोकेशन यू नीड टू ड्राफ्ट दैट लाइन। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करने जाऊंगा तो वो 25 बनेगा नहीं बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं माउस से क्लिक करके 25 सिलेक्ट करना चाहूँ तो, बट यस वी कैन यूज दिस कमांड प्रॉम्प्ट टू गेट इट। हमें लाइन ड्राफ्ट करना है, कहाँ से ड्राफ्ट करना है? आई विल बी सेइंग दैट आई नीड टू हैव द x position as 25. I need to have x position as 25 and y position at 50. देखिएगा हो गया सिलेक्ट पॉइंट अपने आप, but still that object snap is off. But why it is possible to have that particular point? Because I had mentioned that point location in the command prompt. मैंने command prompt में लिखा इसलिए मैं उसे select कर पाया. I hope you are able to understand. And I'll be mentioning the next point. अब next point कैसे indicate करेंगे? I'll be writing 25 over here. x कितना चाहिए 25, y कितना चाहिए 0. तो ये लाइन कंस्ट्रक्ट हो गया और मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में इतना लिखना पड़ा टू ड्राफ्ट दिस लाइन ओनली। अब देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर देता हूँ। अब लाइन सिलेक्ट करूंगा तो देखिए बहुत ही सिंपल है। आई हैड सिलेक्टेड दिस वन एंड सिलेक्टेड दिस वन एंड क्लिक करना रह गया। सिलेक्टेड दिस वन एंड माय लाइन इज ड्राफ्टेड। इतना ज़्यादा सोचने की या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा होगा। ओके, बट when we need to have the line which is presenting a center line over there, सोचिए कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर का फ्रंट व्यू आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या होगा, उसका सेंटर होगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू स्ट्रेच दैट वन for a particular length. So I'll be stretching it for 10 units over here. And in same manner, I'll be holding that position, pulling it in upward direction. And changing the position for here as a length, I'll be mentioning 70. And as an angle, I'll be mentioning 90. So it is now extended. अब ये सेंटर हमें चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए। सो आई विल बी क्लिकिंग एज अ सेंटर लाइन और सेंटर। ठीक है, सो नाउ इट इज मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटर लाइन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड इफ आई वांट टू मेंशन इट्स हाइट, सिलेंडर्स हाइट, देन आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस जियोमेट्री, डायमेंशंस ऑन रख के देखिए लाइन पे क्लिक करेंगे वो लाइन का हाइट रिप्रेजेंट कर देगा अगर मैं उसे एज अ सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ। एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू मेंशन द डायमीटर। बट लुक, व्हेन वी आर राइटिंग और मेंशनिंग इट एज अ डायमीटर तो उसे अलग से डायमीटर जो है उसका आइकॉन देना होगा। सो आई नीड टू गो फॉर टेक्स्ट एंड आई नीड टू मेंशन डाया ओवर देयर। और यहाँ पे जो डायमीटर हम लिख रहे हैं वो इस 50 के लिए है। यू कैन इवन पुल दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन टू मेंशन और मैनेज दैट पोजीशन एंड यू कैन कीप इट क्लोजर टू द डाया एंड प्रेस एस्केप। डाया 50। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इफ यू नीड टू पोजीशन इट विद डायमेंशन देन। और ये तो हो गया फ्रंट व्यू, मुझे टॉप व्यू भी चाहिए। तो टॉप व्यू कैसे ड्राफ्ट करेंगे? देखिए यहाँ दिक्कत हो गई क्योंकि सेंटर चाहिए नीचे सर्कल ड्राफ्ट करने के लिए। आई विल बी क्लिकिंग ऑन सर्कल। अभी मैं ये बता देता हूँ, बाद में हम सर्कल कैसे ड्राफ्ट करेंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, सो आई विल बी मेंशनिंग वन पोजीशन ओवर हियर समवेयर। चलिए इसे भी हम यहीं से पोजीशन कर लेते हैं, यहाँ से करते, कोई बात नहीं। सेंटर पॉइंट ऑफ फॉर सर्कल इट इज हैविंग x 25 and y would be -30 and diameter is
the radius is going to be 25. I hope you are able to see. Circle भी दिख रहा है आपको. And over here, if I click on dimension and this one, then it is always going to mention it in terms of phi. Phi means diameter. It is 50. And if you need to have the center line extended, you can click on this one and you can pull it in downward direction. If you want extension of same line, then okay, इस लाइन पे क्लिक करके आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो. अच्छा, I had clicked on escape rather than tab. Tab हो गया. Now let me mention it as a 130. So now it is that center line is extended. It is passing through this region. वैसा ही दूसरा सेंटर लाइन आप यहाँ से सर्कल से भी बना सकते हो. I hope you are able to understand. समझ में आ रहा होगा आपको. ठीक है, तो ये हो गया लाइन बाय यूजिंग आइकन एंड बाय यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट. दोनों चीजों को हमने यूज कर लिया. अब हम शिफ्ट होते हैं पॉलीलाइन में. तो देखिए पॉलीलाइन क्या होता है. पी लाइन माने कंटिन्यूअस लाइन which is accepting the orthogonality also and the positions also. Multiple positions can be drafted by using p line. p line और line में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर लाइन का कमांड एक बार क्लोज करने के बाद you cannot start with the end point, but in p line you will be always starting with the end point. Let us start with the draft. चलिए यहाँ पे p line बोलते हैं 0 0 है, तो यहाँ से शुरू हुआ. यहाँ पे देखिए नीचे क्या पूछता है. You will be able to draft an arc half width, length and width, or you can even go for u माने undo, माने इस कमांड को हमें एग्जीक्यूट नहीं करना. इफ आई राइट आर्क ए लिख के एंटर करूंगा तो वो आर्क के फॉर्म में ड्राफ्ट कर लेगा. अब आर्क के फॉर्म में उसे ड्राफ्ट करना है तो उसे क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए, एंगल चाहिए. So if I do say I need to have it as 100 position at 180 degrees, तो वो इतना ड्राफ्ट करेगा. I hope you are able to see it. And if I press escape, then that particular geometry is going to be available over there. ये हमने p लाइन यूज की, ठीक है. अब देखिए मैं लाइन कमांड यूज कर रहा हूँ. फिर से लाइन कमांड यूज करता हूँ. इट इज आस्किंग मी फॉर द फर्स्ट पॉइंट. अब मैं इस बार थोड़ा अलग तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब p लाइन क्लिक किया तो उसमें आर्क एज ऑप्शन अवेलेबल था, पर लाइन में क्या वो आर्क ऑप्शन अवेलेबल है. लेट अस सी. Specify first point. Let me mention it as x as -50 and y as 0. Line specify next point. देखिए यहाँ पे वो next point पूछ रहा है, but it is not asking about drafting an arc or other kind of geometry. Is it clear? I hope you are able to now find the difference between these two, line command and polyline p line command. आ रहा है समझ में? Now if I mention it as a -100 comma 0, तो ये हो गया लाइन कमांड क्लोज. नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. डिफरेंस क्या है दोनों में. अगर मैं लाइन लिखता हूं तो उसका सेकंड जो क्वेश्चन होगा उसके बाद में कमांड प्रॉम्प्ट हमें क्या पूछेगा, लाइन के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है. बट इफ आई राइट p line, so it is going to ask me for the first point and then it is going to ask me for other kind of geometry also, which is in terms of either arc or half width or length or width. Or if you want to cancel that command, you can even go for undo. तो जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हुआ होगा उसी पे वो हमें वापस लेके जाएगा. चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बताइए. नो सर. तो शुड आई कंटिन्यू? सर अंडू की जगह एस्केप नहीं कर सकते? एस्केप भी कर सकते हो. अंडू में क्या होगा, आपका जो लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड है उसी पर वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. और एस्केप करेंगे तो वो कमांड क्लोज करके बाहर निकल जाएगा. ओके सर. ओके चलिए, और किसी को कोई क्वेरी?
हो सकता है, ठीक है, आपको क्वेरी हो सकता है, आप बताइएगा जो भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी, पूछेंगे तो पता चलेगा कि क्वेरी क्या है। नाउ लेट मी कंटिन्यू विद दी नेक्स्ट कमांड विच इज सर्कल। पॉलीलाइन और लाइन तो आपको पता चल गया होगा, अब मैं सर्कल पे शिफ्ट हो जाता हूँ। We had already seen one circle over here, हमने एक तो ड्राफ्ट कर ही लिया। आगे बढ़ते, देखिए सर्कल, तो सर्कल में 6 टाइप के पॉसिबिलिटीज हैं टू ड्राफ्ट अ सर्कल। फर्स्ट इज इन सेंटर एंड रेडियस फॉर्मेट, माने जब आप क्लिक करेंगे सेंटर रेडियस तो वो सबसे पहले पूछेगा टू मेंशन सेंटर, और दूसरा क्वेश्चन वो जो पूछने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें पूछा जाता है सेंटर लोकेशन एंड डायमीटर। तीसरा जो फॉर्मेट है उसमें पूछा जाता है एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स बिटवीन विच यू वांट अ सर्कल। फोर्थ फॉर्मेट है उसमें 3 पॉइंट पूछे जाते हैं, उन 3 पॉइंट के बीच में आपका सर्कल हो सकता है और 3 पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करके आपका सर्कल हो सकता है। द फिफ्थ कंडीशन और फिफ्थ फॉर्मेट ऑफ ड्राफ्टिंग अ सर्कल इज लाइक दिस, 2 टेंजेंट्स एंड 1 रेडियस। और जो लास्ट फॉर्मेट है, सिक्स्थ फॉर्मेट है, विच इज टेंजेंट, टेंजेंट एंड टेंजेंट। इंस्क्राइब्ड सर्कल अगर आपने नाम सुना है, और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल अगर आपने नाम सुना है। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल को इंडिकेट करने के लिए है, और सिक्स्थ जो है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल इंडिकेट करने के लिए है। लेट मी टेक वन बाय वन ईच कंडीशन, हर एक कंडीशन को अलग से लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले कमांड प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, फिर जाके आइकॉन यूज करेंगे। आई एम राइटिंग CIRCAL सर्कल, so it is asking me for T circle and circle. I am clicking on circle right now, so it is going to ask me all the possibilities which had been available in icon also, और उसमें से 3 possibilities को वो प्रमोट कर रहा है by using the command prompt। बाकी को प्रमोट नहीं कर रहा क्योंकि वो डायरेक्टली जियोमेट्री के हिसाब से डिसाइड करना होता है। So if I click on, look, you can read the statement over here, specify center point for a circle. Let me mention it as 50, 50. It is going to be available over here somewhere at 50, 50, and it is asking me for radius. You will be able to see radius over here at the bottom. यहाँ पे आपको radius लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं radius लिख देता हूँ 50 and I am pressing enter। तो देखिए 50, 50 was a center and from that center we had drafted a circle। और सर्कल पे जाएंगे, चलिए मैं लाइन कमांड को क्लिक करता हूँ, तो देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है इसलिए मुझे सेंटर दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है इसलिए सेंटर दिख रहा है। इफ आई क्लोज दैट ऑब्जेक्ट स्नैप, तो अब वो सर्कल मुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा सेंटर मुझे नहीं दिख रहा, दिख रहा है नहीं दिख रहा। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर हम कर्सर से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है तो सेंटर दिखेगा, सेंटर से कुछ भी ड्राफ्ट करना है यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट इट। और अगर ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ है तो आप उसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू वांट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, वो नहीं है तो क्या करना होगा, यू नीड टू इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू बी द सेंटर, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको एज अ पॉइंट इंडिकेट करके फिर ड्राफ्टिंग शुरू करना होगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, ये समझ में आ रहा होगा आपको। So this was about drafting a circle by using the center and radius, ठीक है। अब हम फिर से सर्कल लिखते हैं और दूसरे टाइप को यूज करते हैं, CIRCLE सर्कल, एंटर। Now it is asking me for specify center point for circle or 3P, 2P, TTR format, tangent, tangent, radius। TTR माने tangent, tangent, radius। 3P माने 3 point positions, 2P माने 2 point positions। Let me take 2P first। I'll be writing 2P and enter। So it is asking me for first end point of circle diameter। एक सर्कल के diameter का first end point indicate करिए। So let me mention it as 25। चलिए हम 50 के रेडियस से हर बार काम करते हैं, तो let me mention it as 50, 0।
And fifth, it is going to ask me for the next end point of diameter. Diameter का next end point क्या हो सकता है वो पूछ रहा है. So let me mention it like we have taken 50,0. So let me take 100. यहाँ पे हमें लिखना है तो I'll be writing 100, 100, 50. Now circle is generated. I hope you are able to see it. एक जो था पोजीशन वो हमने कौन सा लिया 50 और दूसरा पोजीशन हमने लिया 150. तो उससे जो सर्कल बन सकता है वो इंडिकेट हो गया यहाँ पे. ओके तो ये दो एंड पॉइंट जिस भी फॉर्मेट में कवर हो सकते हैं उस फॉर्मेट में उसने सर्कल ड्राफ्ट कर लिया. अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या होती है. These two diametrical endpoints are going to be clearly identified inside your drawing. अगर आपका ड्राइंग कॉम्प्लेक्स है जैसा हमने कल देखा था उतना कॉम्प्लेक्स है तो आप इसे प्रिफर नहीं करेंगे. ओके क्योंकि वहाँ पे दिक्कत ये होती है when you prefer this command prompt at that time you may or may not be able to identify exact location of where your draft should go. और देखिए मैं एक और चीज़ यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ये हेल्पफुल रहता है. चलिए ये कोई कंडीशन है और उसमें हमें फर्स्ट एंड पॉइंट और लास्ट एंड पॉइंट ये रखने हैं. लेट मी कीप दिस ऑन. ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखते हैं. एंड नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ सर्कल CIR सर्कल और उसमें मैं ले लेता हूँ 2P फॉर्मेट. अब देखिए फर्स्ट एंड पॉइंट मैं यहाँ पे जाके इसे क्लिक कर देता हूँ. सेकेंड एंड पॉइंट यहाँ पे जाके इसे क्लिक कर देता हूँ. इस क्लिक और नॉट. ओके आई हैड नॉट क्लिक द एंड पॉइंट. एंड पॉइंट क्लिक कर दिया. फर्स्ट एंड पॉइंट और ये सेकेंड एंड पॉइंट. तो हमारा सर्कल जो है वो ड्राफ्ट हो जाएगा. एंड इन सिमिलर मैनर इफ आई एम नॉट यूजिंग द कमांड प्रॉम्प्ट और मैं सर्कल पे चला जाता हूँ वहाँ पे जाके 2 पॉइंट कंसीडर करता हूँ. एक पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो इट इज गोइंग टू ड्राफ्ट दैट सर्कल. ओके ये होता है. बट इफ यू वांट टू चेक इज इट इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यहाँ पे. क्यों? क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज इधर इंटरसेक्टिंग और कमिंग आउट ऑफ दैट जोन. दिख रहा है आपको. देखिए सर्कल और रेक्टेंगल से बाहर निकल रहा है तो इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब प्रॉपर्ली मेंशन नहीं हो पाता बिकॉज वी हैव टेकन रैंडम डायमेंशंस ओवर हियर. और वो सब जगह पे दिक्कत होगी. देखिए है. सो व्हेनेवर यू आर इन सच सिचुएशन यू कैन नॉट टारगेट द रेडियस बट यू शुड बी टेकिंग द 3 पॉइंट क्राइटेरिया. अब 3 पॉइंट क्राइटेरिया लेंगे तब जाके अगर हम ड्राफ्ट करते हैं तो हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा. नाउ लेट मी सिलेक्ट दिस वन एज अ फर्स्ट पॉइंट. ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया हमने. नाउ लेट मी टेक दिस एज अ सेकेंड पॉइंट. प्लीज ओवर हियर आराम से उस पोजीशन पे जाके सिलेक्ट कर पाएंगे. आप सिलेक्ट कर दीजिएगा. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द थर्ड पॉइंट. तो ये 3 पॉइंट जो है यू विल बी अमेज्ड टू सी यही 3 पॉइंट उसने सिलेक्ट किए हुए हैं. ठीक है. ओके दिस इज द पोजीशन. और ये यू मे फाइंड सम डिफरेंस ओवर हियर बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एनकाउंटर्ड फॉर द ड्राफ्ट व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस नेक्स्ट. तो वो पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड 3 पॉइंट. नाउ लेट मी टेक अनदर ज्योमेट्री टू शो यू दिस एस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्टिंग. अभी मैं लेंथ विड्थ कुछ नहीं देख रहा. डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूँ और वो ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको बताना है मुझे. ओके अब ये ऑब्जेक्ट क्या है बताइए. ये ऑब्जेक्ट क्या है. स्क्रीन पे कौन सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है बताइए. ट्रायंगल.
ट्राइंगल, हाँ वेरी गुड, है ना, सब लोग अवेलेबल है? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ठीक है। तो देखिए अब ट्राइंगल के अंदर कितने पॉसिबिलिटीज हैं सबको एक साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। लेट मी स्टार्ट विथ टेंजेंट 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 फॉर्म, टी फॉर्म। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आई विल बी क्लिकिंग ऑन वन ऑफ द लाइन ओवर हियर, इनमें से इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। नाउ आई विल बी मूविंग ऑन सेकंड लाइन एंड आई विल बी मूविंग ऑन थर्ड लाइन। मैंने पहले ही एक लाइन को 2 बार सिलेक्ट कर दिया। आई विल बी प्रेसिंग एस्केप। नाउ आई विल बी मूविंग अगेन ऑन सेम कमांड। I'll be clicking on first line, I'll be clicking on second line, I'll be clicking on third line, so I'll be able to have inscribe the circle. Okay, तो ये हो गया टेंजेंट 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 वाला मेथड। तो वो इस लाइन से भी टेंजेंट होगा, इस लाइन से भी टेंजेंट होगा और थर्ड लाइन से भी टेंजेंट होगा। Now let me take the 3-point aspect over here to draw circumscribe the circle। तो 3 पॉइंट पे शिफ्ट होता हूँ। I'll be clicking on the first point over here. I'll be clicking on the second point over here, which is taking time. Okay. So you'll be having second point over here, and you'll be having third. कहीं और क्लिक कर दिया इसे। Let me start from here. One point. Look, I'm running Google Meet also, so it is taking time. As well, the software is hanging. दोनों चीज़ें हो रही हैं, गूगल मीट साथ में चल रहा है इसलिए। द सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ इट्स डन। आई होप यू आर एबल टू सी। तो ये हो गया सर्कमस्क्राइब सर्कल। समझ में आ रहा है सबको? लेट मी गो फॉर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस फॉर्म। चलिए टेंजेंट 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 पहले ड्रॉप कर लेते हैं। उसके अंदर तो इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब दोनों एक साथ दिखेंगे आपको, सेकेंड एंड थर्ड। ये हो गया इंस्क्राइब द सर्कल और ये हो गया सर्कमस्क्राइब द सर्कल। इसे लिख देंगे इंस्क्राइब द सर्कल। यहाँ पे ये जो है लाइन को होल्ड करके यू कैन पुश इट। हो गया। वैसे ही यू कैन मेंशन सर्कमस्क्राइब। ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देते हैं तो वो उस पॉइंट को क्लिक नहीं करेगा और यहाँ से ड्राफ्ट करेगा। I hope you are able to see. And this one is going to be the triangle. ठीक है, तो ये जो है इन बेसिक डिटेल को आप अपने जो जियोमेट्रीज हैं उन्हें ड्राफ्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम्स जो है इंजीनियरिंग में जो भी डायग्राम्स वगैरह आप ड्रॉ करते हो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ये हो गया सर्कल बाय यूजिंग दिस डिफरेंट 6 फॉर्मेट्स। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को भी कवर कर लेते हैं। So let me remove few details from here and we will be working on that aspect also. बाकी सब डिटेल्स को निकाल देता हूँ और हम अब इस एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं जिसमें मेंशन किया गया है टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस। सो इट इज आस्किंग मी फॉर 2 टेंजेंट्स, सो दिस लाइन इज गोइंग टू बी अ टेंजेंट, another line is going to be a tangent, and let me mention the radius. I'll be mentioning it as 30. It is going to be mentioning 30 units over here. Let me draft it again. Tangent, tangent, and point on object, second target. Radius 30. ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट टेंजेंट सर्कल, अरे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस।
तो यहाँ पे हमने रेडियस को टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है, रेडियस को डिपेंडेंट नहीं रखा है, डिपेंडिंग ऑन थर्ड वैसा नहीं रखा है, ठीक है, थर्ड लाइन वहाँ से रेडियस डिसाइड नहीं होगा, रेडियस हम डिसाइड करेंगे। इफ यू नीड टू चेंज द रेडियस यू कैन ऑल्सो चेंज इट, रेडियस को चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में चले जाइए और प्रॉपर्टीज में रेडियस दिया होगा, यू कैन पुश इट टू 25, तो 25 होगा। It depends how you are indicating the information. And if it is losing the constraints, constraint माने उसे टेंजेंट रहना था, वो अगर लूज कर जाता है तो कंस्ट्रेंट लॉक्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे मैंने बोला था कि देयर विल बी कंस्ट्रेंट लॉक्स इन इंसर्ट आइटम। Let me check for it. Okay, here you are going to have those constraint locks. ये constraint lock है सारे। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद it is never changing its condition, वो भी हम देखते हैं। अब देखिए one more thing is there, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। We are drafting, let me keep this on और snap object snap को on रखते हैं और सेंटर से एक लाइन को ड्राफ्ट कर लेते हैं। Start with line command, specify first point 0,0 and specify next point, let me take 50, 50। ये एक लाइन हो गया। Okay, now if I move closer to this line, लाइन को मैं थोड़ा क्लोज ऑब्जर्व करता हूँ, तो देखिए यू विल बी एबल टू सी पिक्सेल्स ओवर हियर, ये छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में दिख रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट इट इज देयर लुकिंग लाइक अ डॉट। तो वो क्यों होता है? बिकॉज द एल्गोरिथम ब्रेसनहाम और डीडी एल्गोरिथम जो डिजाइन होते हैं इसे ड्राफ्ट करने के लिए, वो पोजीशंस को कुछ ऐसे फॉर्म में देखते हैं। ओके, इफ द स्लोप इज if the slope is more than certain degrees, then it should be moving for 1 point upward direction and 1 point leftward or rightward direction। चलिए एल्गोरिथम के बारे में बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, बट इस लाइन के ऊपर जब मैंने कर्सर रखा तो you'll be able to see steps दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए you'll be able to see steps। वो क्यों है? क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है वो पिक्सेल्स को, उतने ही पिक्सेल्स को ऑन कर रहा है जो एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी को फॉलो करे, और वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी या रूल सेट क्या होता है? एल्गोरिथम थ्रू विच वी आर ड्राफ्टिंग दिस डिटेल्स। कौन से दो एल्गोरिथम मेजरली यूज होते हैं? डीडी एंड ब्रेसनहाम एल्गोरिथम, ये दो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का पार्ट नहीं है ये, यहाँ पे तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर टारगेट करना है। ओके, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ओके, चलिए ठीक है, लेट मी टेक सम रिस्पॉन्सेस फ्रॉम यू। रिस्पॉन्सेस लेते हैं, जिनको अभी तक समझ में आया दे कैन राइट 1 इन द चैट बॉक्स। और जिनको समझ में नहीं आया दे कैन राइट 0।